Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear children, today we are going to study a story, and the name of the story is The Lost Spring. The Lost Spring is the title of the story. Its author is Anish Jung. So, Anish Jung has been one of the most celebrated journalists of our country. She has been a great author also. So, therefore, what you will find when you shall read the story, you will find the language of the story, it is something journalistic in style. So, the language of this story, The Lost Spring, is journalistic, because the impact of a journalist is very much on the language of this story. So, प्यारे बच्चों, हम लोग जिस कहानी को आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम द लॉस्ट स्प्रिंग है और कहानीकार अनीश जंग हैं। अनीश जंग अपने देश के एक सुप्रसिद्ध पत्रकार भी रहे हैं और एक बहुत ही बेहतरीन लेखिका भी रही हैं। तो हम जब कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता ये चलेगा कि कहानी की जो भाषा है वह पत्रकारिता की भाषा जैसी है। Thereafter, children, let us discuss something about the title of this story, because you all understand that title is closely connected with the contents of the story. किसी भी कहानी का टाइटल उस कहानी की बातों से, कहानी के कंटेंट से जुड़ी होती है। एक गहरा ताल्लुकात होता है कथानक में और कहानी की टाइटल में। So, and in fact, of course, in the exams they ask a long question, a question for 5 marks that justify the title of the story. So, let us see first spend some time on understanding this title. The title is The Lost Spring. So, children, first of all try to understand, a spring stands for what? A spring is a very lovely season. We all know, we all enjoy the spring season. So, it is such a season when the weather conditions are neither too hot nor too cold. Weather condition spring के महीनों में नहीं तो ज़्यादा सर्द होता है और नहीं तो ज़्यादा गर्म होता है। तो एक ढंग से it's really a very comfortable, we find a very comfortable weather condition in the season of a spring. So, here you can infer the meaning that a spring stands for happiness, a spring stands for joy, a spring stands for comfort. All these lovely things are connected with a spring. ये सारे खूबसूरत चीज़ें इस स्प्रिंग सीजन से जुड़ा हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, दैट स्प्रिंग इज लॉस्ट, वह स्प्रिंग खो चुका है। दैट स्प्रिंग हैज बीन स्टोलन, उसकी चोरी हो चुकी है। सो वन थिंग इज एम्पली क्लियर हियर, एक बात तो बच्चों यह बिल्कुल साफ है कि यह स्प्रिंग जो खुशी का प्रतीक है, स्प्रिंग जो आनंद का प्रतीक है, स्प्रिंग जो उमंग का प्रतीक है, वह स्प्रिंग खो चुका है, वह बसंत गायब है। सो हियर द टाइटल clearly reveals this. It gives you a clear-cut hint that something which is good, something which is comfortable, something which is joyous, something which is ecstatic, those things are lost. Those things are lost from the life of some people. Let us find in the story who these people are.
अब जिनकी ज़िंदगी से यह स्प्रिंग गायब है, यह बसंत गायब है, यह आनंद गायब है, यह उमंग गायब है, यह खुशी गायब है, ज़रा ढूंढें वो कौन से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी से यह आनंद गायब है। लेट अस सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग। So, in fact, there is a brief introduction about the author, Anish Jung. So, it says that the author was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. तो अपने बचपन, यह लेखिका अपनी बचपन और अपनी यौवनावस्था कहें हैदराबाद में बिताती हैं। She received her education in Hyderabad. हैदराबाद में ही तालीम भी हासिल करती है, शिक्षा ग्रहण करती हैं, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हैदराबाद के बाद फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेखिका संयुक्त राज्य अमेरिका जाती है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। और लेखिका के लिए सौभाग्य की बात ये थी कि दोनों माता पिता लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। और अनीस जंग भी एक लेखक के रूप में ही अपनी कैरियर हिंदुस्तान में शुरू करती हैं। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। बहुत मशहूर अखबारों के भी वो संपादक रह चुकी हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी बहुत सारी किताबों को भी उन्होंने लिखा है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। और ये जो अंश, ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, यह एक किताब से लिया गया है। उन्हीं का किताब है जिसका टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग है। स्टोरीज ऑफ ए स्टोलन चाइल्डहुड। वो बचपन जिसे चुरा लिया गया हो, वह बचपन जिसे कोई मानो हाईजैक कर लिया हो। Here she analyzes the grinding poverty, बेइंतहा गुर्बत, बहुत ही ज़्यादा गरीबी, and traditions which condemn the children to a life of exploitation। गुर्बत से भरी हुई ज़िंदगी और ये बच्चे जिनका उत्पीड़न होता है। तो यही इस कहानी का प्लॉट है। Let us see the first paragraph of the story. It goes like this. The story begins with this line, sometimes I find a rupee in the garbage। कभी कभार इस कबार में मैं एक रुपया पा लेता हूँ, या मुझे एक रुपया इस कबार में, इस गार्बेज में मिल जाता है। गार्बेज कबाड़ को कहते हैं जो रद्दी होता है। सो गार्बेज हियर garbage, no? The meaning is the discarded household items, या यूं कहें तो जो त्यक्त चीज़ है या जो परित्यक्त है, जिनका त्याग कर दिया गया हो, जिनको लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसे हम गार्बेज कहते हैं। और हिंदी में एक दूसरा शब्द भी है कबाड़। यह एक प्रचलित शब्द है इसके लिए। सो वाई डू यू डू दिस? तुम इसे करते क्यों हो? आई आस्क साहेब। मैंने साहेब से पूछा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक लड़का है जिसका नाम साहेब है, और साहेब से लेखिका पूछती हैं तुम क्या करते हो? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging, ढूंढते हुए किसी भी चीज़ को बेसब्री से, उसे स्क्राउंज करना कहते हैं। टू फाइंड आउट समथिंग fervently. So I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood.
मैं रोज़ इस लड़के साहब से अपने पड़ोस में मिलता हूँ, उसे देखता हूँ कि गार्बेज डंप कूड़े की ढेर में वह कुछ ढूंढ रहा है, मानो सोना ढूंढ रहा हो, गोल्ड ढूंढ रहा हो, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, वह सोने की तलाश कर रहा हो मेरे पड़ोस में या मेरे पड़ोस के गार्बेज डंप्स पर, जहाँ कूड़े कबाड़ी वगैरह फेंके जाते हैं या उनकी ढेर की जाती है। तो उस जगह पर लेखिका इस लड़के से रोज़ मिलती है और एक दिन वह पूछ देती है कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब बहुत पहले अपने घर से निकल गया था। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, सो साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, बहुत पहले अपने घर से निकल गया था। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और बच्चों, उसका घर कहाँ था? उसका घर ढाका के हरे भरे खेत खलिहानों, हरे भरे मैदानों के बीच था। ढाका आप ज़रूर समझते होंगे, यह बांग्लादेश का कैपिटल है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, क्योंकि बच्चा बहुत पहले घर से निकल गया था, घर को त्याग कर चुका था, तो उसके घर के ख्याल भी शायद ही उसको आते हैं। उसकी यादगारी में भी बहुत हल्की सी, फीकी सी याद है अपने घर के बारे में वह ठीक याद भी नहीं कर पाता है। There were many storms that swept away their fields and homes. हर साल चूँकि बांग्लादेश का जो इलाका है वह निचली इलाका है, तो हर साल बाढ़ें आती है, वहाँ बहुत सारे फ्लड्स आते हैं और खेत खलिहान घर सब कुछ को बहाते हुए लेकर चले जाते हैं। हिज मदर टेल्स हिम, लड़का खुद नहीं जानता है लेकिन उसकी माँ उसे ये कहती है, दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, और यही वो वजह है कि उन लोगों को मजबूर होकर अपने घर का परित्याग करना पड़ा। भला ज़रा सोचो बच्चों, अपने घर को खुशहाली की स्थिति में भला कौन छोड़ता है। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और इस महानगर में वह सोने की तलाश करता है, वह गोल्ड ढूंढता है, कबाड़ में गोल्ड ढूंढता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। जब लेखिका, चिल्ड्रन सी द फर्स्ट लाइन, बच्चों पहला लाइन देखें जिसमें लेखिका सवाल करती है, वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। तो अब साहिब जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे करने को कुछ है नहीं। और इसी तरह की जो राइटिंग होती है उसे जर्नलिस्टिक वे ऑफ राइटिंग कहते हैं या जर्नलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। पत्रकारिता की भाषा बिल्कुल ऐसी ही होती है। ही मटर्स लुकिंग अवे, वह बुदबुदाता है, बहुत आहिस्ते धीमी आवाज़ में कहता है कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, आई से ग्लिबली, मैंने जल्दीबाजी में फटाक से कह दिया स्कूल जाओ, बगैर कुछ सोचे विचारे। तो बगैर कुछ सोचे विचारे जब यूं ही आप बगैर पर्पस के कुछ बात बोलते हैं तो उसे ग्लिब कहते हैं या ग्लिबली कहते हैं। तो गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो दैट वॉइस मस्ट साउंड, लेकिन शीघ्र ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने जो कहा, मैंने जो कुछ भी बोला वह कितना हॉलो है, वह कितना गलत है, कितना झूठा है। So children, let us see this now, sum up this first stanza. In the first stanza, what happens? The author encounters साहिब, लेखिका साहिब से मिलती है। यह एक लड़का है and he is finding something, as the story goes, he is finding gold in the garbage. जैसा कि लेखिका लिखती हैं कि वह गोल्ड, गार्बेज में गोल्ड ढूंढ रहा है, कबाड़ में सोना ढूंढ रहा है। ज़रा सोचो,
लेखिका ऐसा क्यों कहती है? बिकॉज इट मे बी नो वेस्ट मटीरियल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में जितने भी लोग हैं उनके लिए यह बिल्कुल ही बेकार का सामान हो सकता है, बट दैट गार्बेज, दैट कबार, वह गार्बेज, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। उनके जीविकोपार्जन का वह एक ही स्रोत है। तो जिससे जिसकी जीविका चलता हो उसका महत्व क्या सोना से कम है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ऑथर उसे सोना बोलता है कि ही इज स्क्राउंजिंग गोल्ड इन द गार्बेज। देन आफ्टर ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत के दौरान लेखिका साहब से पूछती हैं, यूं ही पूछ बैठी, बिकॉज द ऑथर सेज आई आस्क्ड हिम ग्लिबली। तो यूं ही बगैर पर्पस के वो पूछती हैं कि वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? इस ढंग की सवाल करती हैं। फिर लेखिका को यह अफसोस होता है कि मैंने जो पूछा वो कितना गलत था, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। साहब बोलता है, वह लड़का बोलता है, कहता है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो विद्यालय का निर्माण करेंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा। स्टार्ट स्कूल, या इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम। लेखिका उसे कहती हैं कि इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, अगर मैं एक विद्यालय शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। यूँ मजाकी अंदाज में लेखिका यह कह बैठती है। येस ही सेज। लड़का बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। स्माइलिंग ब्रॉडली, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, मानो कि उसे हकीकत जान पड़ रहा था। वो समझ रहा था कि उसके दिन फिर जाएंगे, स्कूल बनेंगे और वो स्कूल जाएगा। A few days later, I see him running up to me. कुछ ही दिन बीते थे, वह बच्चा दौड़ते हुए मेरे पास आता है। Is your school ready? क्या आपका विद्यालय तैयार है, बन चुका है? It takes longer to build a school. विद्यालय बनाना कोई मजाक थोड़ी है, बहुत वक्त लगता है। I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. मैं बहुत ही embarrass होकर, परेशान होकर, दुखी होकर यह बोली, यह कही, आखिर यह एक कैसा वादा था जिसे मैं पूरा नहीं कर सका, और अगर मैं पूरा नहीं कर सकती तो भला ऐसे वादे मैंने किए क्यों? So the author feels embarrassed no, because of her own words, the way she promised, the way she asked. So Sahib, the young boy, he believed the author. He thought his days are very soon going to be changed. There will be a school in the vicinity, and I shall attend the school like all other boys. My life will also change. But promise like mine abound in every corner of this bleak world. But the author feels, यह लेखिका सोचती है कि इस ढंग के वादे या इस प्रकार की बातों से तो दुनिया भरी पटी है। The whole world is filled with this kind of promise. पूरा संसार इस ढंग के झूठे वादों से भरी पड़ी है। After months of knowing him, महीनों उसे जानने के बाद, I asked him his name. मैंने उससे उसका नाम पूछा। जवाब मिलता है, साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वह बड़े फ़ख्र के साथ कहता है, मेरा नाम साहिब आलम है। साहिब ए आलम, द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड चिल्ड्रन इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। प्यारे बच्चों, इस शब्द का मतलब है जो इस संसार का मालिक है। साहिब, आलम का मतलब संसार होता है और साहिब का मतलब मालिक होता है। तो समवन हु इज द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस इज द नेम ऑफ दिस बॉय हु इज अ रैग पिकर। यह उस लड़के का नाम है जो एक कबार का काम करता है, एक रैग पिकर है। सो व्हाट एन आयरनी,
नहीं, इस नाम में भी आयरनी है, क्योंकि नाम उसका है जिसका मतलब होता है संसार का मालिक, और काम उसका वह है जो गरीब से गरीब लोग करते हैं। तो देयर इज कंट्राडिक्शन इन द नेम एंड इट्स मीनिंग एंड द प्रोफेशन ऑफ द बॉय। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। उस लड़के को भी, वह लड़का भी अपने नाम के मतलब से बेखबर है, उसे भी कुछ मालूम नहीं उसका क्या मतलब होता है। इफ़ यू न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह उसके अर्थ को समझता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वह मुश्किल से उसे इस पर यकीन होता। भला वह लड़का कैसे अपने नाम के मतलब पर भी यकीन करता। जरा सोचो बच्चों, कितनी बड़ी विडंबना है। या अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इससे वह वाकिफ नहीं कि उसके नाम का क्या मतलब, वह नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, गलियों में अपने दोस्तों के साथ फिरते रहता है, यूं घूमते रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, एक आर्मी है नंगे पाँव वाले बच्चों का, जिनके पैर में जूते चप्पल नहीं हैं। एक झुंड सा है, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह में जिस तरह से चिड़ियाँ चहचहाते हुए आती है, ठीक उसी तरह से ये भी बच्चे अपने घर से गलियों की तरफ कूच करते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और ठीक उन्हीं पंछियों की तरह शाम होते ही गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, और ज्यों ज्यों वक्त बीतते गया, समय बीतते गया, महीनों में मैंने उन सब को जान गया था। जितने भी बच्चे थे उन सब को मैं पहचान गया था। सो चिल्ड्रन, इन दिस पैराग्राफ व्हाट वी कम टू नो, in fact, the way the author has promised to Sahib that if I construct a school, Sahib says in reply, of course I'll go there. But very soon the author, she realizes that it's not the construction of a school is not the game of one day. It can't be done by one individual. She realizes, and she is embarrassed also. Thereafter, the author focuses on the name of this boy, on the name and the meaning of the name. So we come to know that the name of the boy is साहिब आलम। नहीं, हम जानते हैं इस लड़के का नाम साहिब आलम है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सो व्हाट वी फाइंड, देयर इज अ ह्यूज कंट्राडिक्शन बिटवीन द नेम, द मीनिंग एंड द एक्टिविटी ऑफ द बॉय। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Why aren't you wearing chappals? This is what the author asks. यह लेखिका पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। I ask one, उनमें से एक को मैंने पूछा। My mother didn't bring them down from the shelf. लड़का बहुत चालाक था बच्चों। लड़के का जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार जवाब देता है। ज़रा सोचो उसका जवाब कैसा है। वह लड़का बोलता है, चप्पल तो हैं, लेकिन मेरी माँ छज्जे से उसे नीचे उतारती ही नहीं, तो मैं पहनूंगा कैसे। ही आंसर्स सिंपली, वह ऐसा जवाब देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर। दूसरा मानो उससे भी बड़ा उस्ताद था, वो कहता है कि अगर माँ उतार भी दे उस चप्पल को, तो बहुत जल्दी ही यह इसे गुम कर देगा, यह इसे खो देगा। एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डोंट मैच। और यह बात कौन कहता है? यह बात वह लड़का बोलता है जिसके पैर में जूते तो हैं, लेकिन दोनों जूते मैच नहीं करते, एक दूसरे से भिन्न हैं, एक दूसरे से अलग हैं। When I comment on it, और जब मैं इस पर बोलता, he shuffles his feet and says nothing। और जब मैं ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारे जूते दोनों दो किस्म के हैं, दोनों दो साइज के हैं, तो वह लड़का शर्मा कर
अपने पैर को पीछे कर लेता है और कुछ नहीं बोलता है, झेंप जाता है। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय, जो तीसरा लड़का है वो कहता है मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, ज़रा सोचो उनकी ज़िंदगी कैसी थी। वो बोलता है कि तमाम उम्र उसे एक जूते पहनने की ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हुई। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में घूमते हुए, टहलते हुए, सैर करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पांव चलते हुए देखे हैं। इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। इसका एक एक्सप्लेनेशन यह है कि यह सिर्फ गुर्बत का ही नतीजा नहीं है। इसका वजह सिर्फ गरीबी ही नहीं है कि बच्चे के पैर नंगे हैं, उनके पाँव में जूते नहीं हैं। एक वजह यह भी है कि यह एक रिवाज है, यह एक ट्रेडिशन है, यह एक परंपरा है जो चलते आ रहा है। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की बेतरतीब गरीबी जो सदियों से, दशकों से, जमाने से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और उसका ये एक्सप्लेनेशन हो, उसकी ये सफाई हो, लेखिका इस पर आश्चर्य करती है। So in this paragraph, children, what we find, in fact, the communication between the author and the children. The children are really very smart, very clever, and very intelligent. Now, when the author asks, why don't you wear chappals or sandals or slippers? So one of the boy, he says that, oh, how can I wear chappals? My mother doesn't bring it down from the shelf. मेरी माँ चप्पल को छज्जे से उतारती ही नहीं, तो भला मैं कैसे पहनूंगा। ओफ, एट द सेम टाइम देयर इज अनदर बॉय, वहीं पास में एक दूसरा लड़का होता है और वो कहता है, इफ शी ब्रिंग्स इट डाउन विद इन डे और टू, द बॉय विल लूज द स्लिपर हियर एंड देयर। वो इसे कहीं गुम कर देगा, वह कहीं खो देगा। एंड एट द सेम टाइम देयर इज अनदर बॉय हु इज वेयरिंग ऑफ कोर्स शूज, बट द शूज आर ऑफ डिफरेंट साइज। एक वहाँ तीसरा लड़का भी होता है, उसके पैर में जूते होते हैं, लेकिन वे जूते अलग अलग साइज के हैं। नो, एंड व्हेन द ऑथर ट्राइज टू टॉक ऑन दैट, द बॉय नो ही गेट्स एम्बैरेस्ड एंड ही डजंट से एनीथिंग। सो हियर इन फैक्ट, by highlighting in fact this condition, know that the children who are called the future of the nation, no, प्यारे बच्चों, आप सब बच्चों को या और भी जो बच्चे हैं उसे अक्सर लोग देश का भविष्य बताते हैं, लेकिन ज़रा सोचो यह कैसा भविष्य है कि जिनके पैर में चप्पल नहीं, जिनके पीठ पर किताबों के बैग नहीं, जो स्कूल जाते नहीं, हाउ विल दे नो व्हिच काइंड ऑफ फ्यूचर दे आर गोइंग टू मेक, नो व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ फ्यूचर. So we shall debate, discuss more and more on this in the next lesson. Till then, goodbye, take care, stay blessed, namaskar.